खबर यह है कि इस बार हमारा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने यानी 2 कदम आगे बढ़ करके देश के पूर्व सैनिकों को संदेश दे दिया है कि आइए हमारे साथ जुड़िए, हम आपकी मुहिम को लेकर आगे चल रहे हैं। उन्होंने कहा हमें लाठी पड़े डंडे पड़े, हम रुकने वाले नहीं हैं और जंतर मंतर पर 23 जुलाई याद रखना होगा। कल उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने रक्षा मंत्रालय में जाकर के और राष्ट्रपति कार्यालय में जाकर के और प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर के अपना उन्होंने जो मेमोरेंडम बनाया, ज्ञापन बनाया, जिसमें लगभग 16 से 17 मांगे हैं और वो मांगे आपकी ओआरओपी की विसंगति हो, हमारे साथ बड़ा भेदभाव हो, मिलिट्री सर्विस पे को लेकर तमाम मांगों को लेकर के उन्होंने जबरदस्त ड्राफ्ट किया है। जैसे कि कल हमने इसके 2 वीडियो बनाए थे और ये आपके सामने दिखाए जा रहे हैं, स्टैंप लगे हैं, उन्होंने एक्नॉलेजमेंट ले लिया है और आपके सामने रखा जा रहा है कि हमने आधिकारिक तौर पर ऑफिस में ये हमने दे दिए हैं। अब आपने हमारे साथ मिलना है, जुड़ना है और इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। साबका सैनिक संघर्ष कमेटी गुरदासपुर की टीम ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮਪੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜੋ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ, ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 1 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 11 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਤੇ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਐਜ ਏ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੁਗਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਮੇਜਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜੇਸੀਓ ਜਵਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ 8ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਔਰ 1 ਰੈਂਕ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ, ਇਕੁਅਲ ਐਮਐਸਪੀ, ਇਕੁਅਲ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵਿਸਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਮੇਚਰ ਆਏ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਰੈਂਕ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਗਨੀਵੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ भी अपनी वीर नारियां ਨੂੰ अपील करदा कि 23 जुलाई ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ दिल्ली पहुँचो। यानी दोस्तों, जेसीयू जवानों की बात कोई भी करे लेकिन बात जमीन पर उतरना होगा, कष्ट भी होगा, भूखे प्यासे रहना होगा, बीवी बच्चों से दूर रहना होगा, जंतर मंतर पर आंदोलन करना होगा। आप जाएंगे तो आप कितना भी किस अनुशासन से चलेंगे लेकिन पुलिस आपको उकसाएगी, वहाँ पर डंडे भी खाने पड़ सकते हैं, गिरफ्तारी भी होगी। जैसा कि विगत वर्षों में उन्होंने कहा है कि हमने भूख हड़ताल की है, हम नहीं डरते, हमने अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, पानी की टंकी पे चढ़े हैं, रेल रोकी है, लेकिन मुझे न्याय चाहिए। और न्याय का मतलब बड़ी सिंपल सी बात रखिए कि 3 जज की रिटायर्ड जजों की कमेटी बना दीजिए, हमारी मांगों को उनका आप किसी तरीके से एनालिसिस करिए, वेरीफाई करिए, यदि आपको सत्य लगे तो आप रिकमेंडेशन सरकार को करिए, यदि सरकार को अच्छा लगे तो हमें दें, अन्यथा ना दें। एमएसपी के ऊपर तो उन्होंने बात की, मैं सरकार के साथ सुझाव कर रहा हूं कि अफसरों को भी कम कर दो, बराबर कर दो, आप 5000 रुपए कर दो सबकी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा भी बचेगा और हमें भी सम्मान मिलेगा। क्योंकि एमएसपी का जो मूल आधार है यानी हार्डशिप को लेकर के, लाइफ रिस्क को लेकर के वो जेसीयू जवानों में ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने कहा है। और बाकी उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन 8वें वेतन आयोग में कहा है हमारी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। और ये आप वीडियो देखें। मैं सबका संघर्ष कमेटी पंजाब नैब सूबेदार रमेश चंद दिल्ली से
मेमोरेंडम देने के लिए आया था दिल्ली में। मैंने राष्ट्रपति कार्यालय, रक्षा मंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में मेमोरेंडम सौंप दिए हैं। वहाँ की कॉपी रिसीव करके लाए। ये तीनों कॉपी मेरे हाथ में हैं। उस बारे में 23 जुलाई 2025 को जंतर मंतर में हमारा जो समितियाँ उनको लेकर के करना है। 9 से 12 बजे तक जो है धरना चलेगा और 12 बजे के बाद जो है सांसद घेराव होगा। इसके लिए सभी संगठनों से मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें और वहाँ पर पहुँचें और 11 तारीख को अपने अपने सांसदों को एक मेमोरेंडम की कॉपियाँ उनके दे दिए अपने अपने एरिया। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। सबका संघर्ष कमेटी जिंदाबाद। अब दूसरी बात कहूँगा दोस्तों, मेजर साहब, यानी मेजर साहब हमारे हीरो बन गए। और ये मेजर साहब आपने देखा होगा कि इन्होंने रोहित बांचवाला कि इन्होंने 5 जुलाई को झांसी रेलवे स्टेशन पर छुट्टी जा रहे थे। उनके पास अपना सामान था और वहाँ पर एक महिला तड़प रही थी, उसका लेबर पेन हो रहा था और लेबर पेन से तड़प रही महिला व्हील चेयर पर थी और उन्होंने उसको जाके संभाला और हेयर क्लिप और कहीं से चाकू एक दुकान से लिया, उसकी मदद से उसकी डिलीवरी कराई थी और बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ हैं। वो हीरो बन गए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उन्हें बुलाया, कमेंडेशन कार्ड दिया, लोग फोटो खिंचा रहे हैं, वाहवाही हो रही है। लेकिन दोस्तों एक और बंदा है, ये आपके सामने मैं रख रहा हूं, आखिर इसने भी जान बचाई है, इसको भी हीरो, इसको भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए था। यानी मेजर साहब को मिला, हम भी बहुत खुश हैं। हमारी आर्मी को सम्मान मिला। सिविल में जितनी खबरें चल रही, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, आर्मी हेडक्वार्टर, और जहां पर मेजर साहब भी खुद क्या क्या कह रहे हैं आप देख सकते हो। हम छुट्टी जा रहे थे, हमारा ऐसा मूड नहीं था, हैदराबाद के रहने वाले थे, लेकिन हमें लगा कि यहाँ हम हेल्प कर सकते, लेकिन हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं था। तो मैंने हेयर क्लिप ली, एक चाकू लिया और उस एक औरत की मैंने सकुशल डिलीवरी कराई और उसको आगे हॉस्पिटल में भेजा ताकि ये स्वस्थ रहे। अब मैं बात करूंगा, छुट्टी पर आ रहा जवान सुशील भामू ने बचाई मुस्लिम व्यक्ति की जान। लोग बोले फौजी ऑफ ड्यूटी नहीं होता, यानी फौजी कभी ऑफ ड्यूटी नहीं होता। उसको जहां लगता है, बॉर्डर पर हो, समाज में हो, जहां गलत होता है, दर्द होता है, उससे दर्द देखा नहीं जाता और उस दर्द को मिटाने की पूरी कोशिश करता है। दोस्तों हाँ, ये बात सच्चाई है। आप भी समझते हो, आपके दिल में क्या कितना रहम है, हम भी इस बात को समझते हैं। इसलिए करुणापूर्वक आपके सामने कह रहे हैं कि लांबा जाटन कस्बे के वीर सपूत भारतीय सेना में पदस्थापित जवान सुशील भामू ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए एक मुस्लिम व्यक्ति की जान बचाई। घटना उस समय हुई जब सुशील भामू छुट्टी पर अपने गांव लौट रहे थे और एक सरकारी बस में यात्रा कर रहे थे। बस में एक कालू खां निवासी मेड़ता रोड को अचानक साइलेंट अटैक आ गया और बेहोश होकर बस में गिर जाता है। हमारे जवान ने CPR, यानी आप समझ सकते हो गए इसको, CPR पल्मोनरी कार्डियो, जिसके लिए छाती पर प्रेशर दे करके 10 मिनट तक उसको इस तरीके से उसकी सांसें वापस लौटाई और उसके बाद एम्बुलेंस बुलाई और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। और डॉक्टरों ने कहा कि हाँ, CPR नहीं मिलता तो इसकी जान चली जाती। तो दोस्तों इस साहसिक और मानवीय कार्य के लिए हमारे जवान सुशील भामू को चारों ओर सराहना हुई है। लेकिन हम चाहते हैं कि आर्मी स्टाफ, यानी आप लोग इसको वायरल करें, वहाँ तक पहुँचाएँ, ताकि जैसे सम्मान रोहित साहब को मिला है मेजर को, ऐसे ही हमारे इस जवान को मिले जिसने एक मानवता के तौर पर जान बचाई और इसको भी कुछ न कुछ प्रशंसा पत्र मिले। आपकी इसके ऊपर क्या राय? धन्यवाद।